अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स और कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डियर स्टूडेंट्स, जो कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन या कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन है, वी नो इट इज़ द नीड ऑफ आवर, बिकॉज जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं दे आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकॉनमी, दे आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस. So there's a need that we should conserve our forests, we should protect and control their deforestation. ये जो conservation of forests है, it is also important. Our forests need to be deforestation need to be controlled, because जो हमारा existing forest cover है that is further decreasing, and we need to increase our forest cover up to the target level, that is 33% of the total geographical area. So several methods are employed in order to conserve our forests as well as protection of these forests. These methods which we involve for the conservation and preservation or protection of our forests, they are as number first जो है that is afforestation and reforestation. We know जो forests हमारे हैं they are under pressure because there is a demand on these forests in order to get different products from the forests. So in order to reduce this pressure on the forests, massive forestation programs should be launched to increase the forest cover of our nation. For that purpose, we should go for afforestation of wastelands. We should go for reforestation of the already degraded forest areas which are not fit for cultivation. So ये जो afforestation program है या reforestation program है, इसके ज़रिए से हम जो हमारे फॉरेस्ट जो इनका जो कवर है, हमारी जो जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें जो फॉरेस्ट का जो कवर दिन ब दिन डिक्रीज़ हो रहा है, बाय मीन्स ऑफ afforestation programs we can increase the, we can say, afforestation in those areas which are wasteland areas, so that will increase the cover of forests. Similarly, by means of reforestation of those forests which are degraded, which have been destroyed and destructed by means of humans or other factors, so that will also increase the cover of forests. So these programs are essential for conservation and protection of our forests. Number second, that is social forestry. This program जो है, ये जो social forest का program है, this type of forest program is done on private lands, that is public and common land, जहाँ पे हम जनरल पब्लिक या जो हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है, इनको हम इन्वॉल्व करते हैं टू रेज द प्लांट्स इन वी कैन से सिस्टमैटिक मैनर, so as to produce the fuel wood, so as to produce the fodder, small timber for local poor people, so that to reduce the pressure of such demands on existing forests. यानी जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है, इसके ज़रिए से हम फॉरेस्ट्री करते हैं, एफॉरेस्टेशन करते हैं बाय मीन्स ऑफ जनरल पब्लिक एज वेल एज स्कूल चिल्ड्रन ऑन द प्राइवेट लैंड्स, पब्लिक एंड कॉमन लैंड्स, जहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं फ्यूल वुड, फूडर, स्मॉल टिम्बर प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए विच आर होली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट्स. सो जब हम उनके लिए इस सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के ज़रिए से इनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल करते हैं, डेट रिड्यूस द प्रेशर ऑफ सच डिमांड्स ऑन आवर फॉरेस्ट्स. उसके बाद थर्ड प्रोग्राम डेट इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री. तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ एक्चुअली ए कम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वायर बाय जहाँ पे हम लैंड एरिया इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री, that is using the woody perennial plants on the same land management units as annual crops, agricultural crops, either sequentially or simultaneously, for obtaining greater outputs in the growth of firewood, fodder and small timber. यानी जहाँ पे हम एग्रो फॉरेस्ट्री के ज़रिए से हम एक ही लैंड पे एग्रीकल्चर भी करते हैं, फॉरेस्ट्री भी करते हैं और एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं,
जहाँ पे हम जो हमारे फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं उनको हम ग्रो करते हैं, उन्हीं के बीच में हम ग्रो करते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, जिससे जो आउटपुट है इन द ग्रोथ ऑफ फायरवुड या फूडर या जब स्मॉल टिम्बर है डेट इज़ इंक्रीज। तो इससे भी क्या होता है कि जो जो पीपल जो पब्लिक या जो ह्यूमन्स विच आर सोल डिपेंडेंट विच हैव सोल डिपेंडेंस ऑन द forests, so this we can say dependence, or we can say this pressure on forests is reduced, and it will also help in the conservation of the existing forests. उसके बाद एक और प्रोग्राम है डेट इज कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और JFM, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि वी इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी इन द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक अरेंजमेंट, एक एग्रीमेंट और अरेंजमेंट किया जाता है बिटवीन लोकल कम्युनिटीज़ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सो एज टू शेयर सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड द लोकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम द एनुअल हार्वेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट्स। यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट के ज़रिए से जो लोकल कम्युनिटीज़ एक्टिविटीज़ होती है, दे आर वी कैन से हेल्पफुल, दे आर मेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। इसके ज़रिए से जो लोकल्स होते हैं या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, दे शेयर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो इससे क्या होता है कि एक तो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ होती है और दूसरा जो फॉरेस्ट्स हैं दे आर आल्सो प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड। उसके बाद एक और प्रोग्राम है डेट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू लॉ, यानी एक और जो प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से हम, या एक और मेथड है जिसके ज़रिए से हम अपने फॉरेस्ट्स को, जो फॉरेस्ट्स की जो डिफॉरेस्टेशन है उसको रोक सकते हैं या कंजर्वेशन कर सकते हैं हमारे फॉरेस्ट्स की, डेट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू लॉ। हम जानते हैं कि जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है विच वाज अडॉप्टेड इन 1952, उसके हिसाब से इट वाज ओब्लिगेटरी डेट 33% ऑफ आवर कंट्री लैंड शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर, बट we know due to population explosion there has been continuously decrease in the forest cover. It has been as per 1999 reports, it is about 19%, that is very much below our national forest policy. So keeping this thing in view, जो हमारे फॉरेस्ट्स है, जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट्स है, we need to protect them actively by implementing the Forest Conservation Act 1980। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, वी नीड टू इम्प्लीमेंट दैट एक्ट एक्टिवली सो एज टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कवर, जहाँ पे हम इस एक्ट की वजह से, इस एक्ट की मदद से हम वी मेड पीपल टू रेस्पेक्ट एंड फॉलो ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और जो भी विच इज़ फाउंड गिल्टी that should be made to pay penalties for any offense punishable under the act. So by implementing that act, by making the functional this act, we can also make protection or conservation of our existing forest cover, as well as we can increase our forest cover. So these were some of the methods which are employed for conservation of our forests, protection of our forests, as well as control of forest destruction or for control of deforestation. Hope you have understood. Thank you.